اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں۔ ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں۔ اقوام متحدہ رپورٹ میں بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی تصدیق۔ وزارت داخلہ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں فوراً NPR بنانے پر زور دیا۔ بنگال میں کسی بھی صورت میں CAA نافذ نہیں ہوگا، ممتا بنرجی۔ امن کے لیے خطرہ ہیں، گورنر جلد برطرف کیے جائیں۔ تمل ناڈو کی حکمراں DMK نے صدر مرمو کو سونپا مکتوب۔ اسدالدین اویسی جھوٹے ہیں، ٹرین پر کوئی پتھراؤ نہیں ہوا، جانچ کے بعد گجرات پولیس کا دعویٰ۔ جسٹس DY چندرچوڑ نے ہندوستان کے 50ویں چیف جسٹس کے طور پر حلف لے لیا۔ حیدرآباد اور کریم نگر میں دھاوے، تلنگانہ کے وزیر گنگولا کملاکر کے مکان پر بھی انکم ٹیکس اور ED کا چھاپا۔ ملعون راجہ سنگھ کی مشروط ضمانت منظور۔ علامہ اقبال ایک عظیم مفکر، یوم ولادت کے موقع پر آستانہ مخدوم اللہ کڑپا عرس شریف کے سلسلے میں ضلع انتظامیہ کڑپا کا جائزی اجلاس۔ عرس شریف کے بہتر انتظامات کو یقینی بنانے نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا کی عہدیداروں کو ہدایت۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا کا شہر کڑپا کے 36ویں ڈویژن میں پیدل دورہ، ہمارے نمائندے مطہر علی خان کی رپورٹ۔ اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ رپورٹ میں بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی تصدیق۔ نیو یارک، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن نے رپورٹ میں بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی تصدیق کر دی۔ اقوام متحدہ کے یونیورسل پیریڈک ریویو کے تحت اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق اپنے ممبر ممالک میں انسانی حقوق کی صورتحال پر مبنی ایک جامع رپورٹ تیار کی ہے۔ یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہر 4 سال بعد تیار کی جاتی ہے۔ 2022 میں ایک بار پھر اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا کمیشن بھارتی حکومت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ جائزے کے لیے مرتب کردہ رپورٹ میں بھارت میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ریکارڈ کی گئی ہیں، جن میں مذہبی انتہا پسندانہ پالیسیاں، عورتوں اور اقلیتوں پر مظالم سر فہرست ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کی جانب سے شائع رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے اقلیتوں اور ہندوؤں کی چھوٹی ذاتوں کے حقوق نہ صرف دبائے گئے بلکہ انسانیت کو ہی شرمسار کیا گیا۔ مسلمانوں پر تو ہمیشہ سے ہی بھارت کی جانب سے مظالم ڈھائے گئے، مگر اب اس لسٹ میں سکھ، دلت اور عیسائی بھی شامل ہو گئے ہیں۔ بھارت میں BJP اور RSS کے پیروکاروں کے سوا باقی ہندو خود کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ وزارت داخلہ نے اپنی سالانہ رپورٹ میں فوراً NPR بنانے پر زور دیا۔ مرکزی وزارت داخلہ نے ایک بار پھر نیشنل پاپولیشن رجسٹر NPR کے معاملے کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اپنی سالانہ رپورٹ میں اس بات پر زور دیا ہے کہ لوگوں کی پیدائش، اموات اور ہجرت کی وجہ سے آبادیات پر جو اثر پڑا ہے اس کی نشاندہی کرنے کے مقصد سے ملک کے آبادی رجسٹر کو اپ ڈیٹ کرنے کی فوری ضرورت ہے۔ 7 نومبر کو جاری کی گئی اپنی سالانہ رپورٹ 2021-22 میں وزارت داخلہ نے کہا کہ شہریت ضابطہ 2003 کے مطابق ملک میں پہلی بار NPR 2010 میں بنایا گیا، پھر اس کی 2015 میں تجدید کی گئی، لیکن اس مرحلے میں حزب اختلاف کی حکمرانی والی متعدد ریاستوں نے اس کی مخالفت کی۔
बंगाल में किसी भी सूरत में CAA नाफिज नहीं होगा, ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी रियासत को तकसीम करने की कोशिश कर रही है और अलाहिदगी पसंदी को हवा देने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने इस बात का इआदा किया कि वो कभी भी रियासत की तकसीम की इजाज़त नहीं देंगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज बीजेपी की शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गुजरात असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र शहरियत तरमीमी कानून CAA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC का बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में किसी भी सूरत में शहरियत तरमीमी एक्ट के निफाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमन के लिए खतरा हैं, गवर्नर जल्द बरतरफ किए जाएं। तमिलनाडु की हुक्मरां DMK ने सदर मुर्मू को सौंपा मकतूब। वजीर आला MK स्टालिन ने कहा, कुछ लोग उनके बयानात को मुल्क मुखालिफ समझ सकते हैं क्योंकि उनके बयानात हुकूमत के खिलाफ अदम इत्मीनान को हवा देने की कोशिश करते हैं, वो बरतरफ किए जाने के मुस्तहिक हैं। तमिलनाडु की हुक्मरान जमात DMK ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को एक मकतूब पेश किया है जिसमें तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि को अमन के लिए खतरा करार दिया गया है। मकतूब में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को आवाम की खिदमत करने से रोकने के लिए उनकी बरतरफी का भी मुतालबा किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी झूठे हैं, ट्रेन पर कोई पथराव नहीं हुआ, जांच के बाद गुजरात पुलिस का दावा। रेलवे पुलिस का कहना है कि जब वंदे भारत एक्सप्रेस जुनूब की तरफ बढ़ रही थी उसी वक्त पश्चिम एक्सप्रेस शुमाल की जानिब बढ़ रही थी, तभी अचानक एक पत्थर उछलकर खिड़की से टकरा गया। गुजरात इंतखाबात के लिए रियासत के दौरे पर पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ट्रेन पर पथराव से मुतालिक पार्टी के दावे को गुजरात रेलवे पुलिस ने गलत ठहराया। रेल पुलिस ने कहा कि बोगल की लाइन से दूसरी ट्रेन गुजरने के सबब एक पत्थर उछलकर वंदे भारत एक्सप्रेस की खिड़की से टकरा गया। इत्तेफाक से ओवैसी उसी बोगी में सफर कर रहे थे। मेंबर्स ने इस बारे में मीडिया में स्टेटमेंट दिया, उसके बाद ये बात ध्यान पर आई है और जब ये ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे सांसद श्री, उस टाइम पे हमारे रेलवे के और RPF के जवान भी उनके साथ सुरक्षा में तैनात थे। जिस समय मुसाफरी के दौरान जिस सीट का कांच क्रैक हुआ है, उस यात्री के द्वारा सूरत पहुंचने पर इस बात की जानकारी देने में आई थी और ट्रैवलिंग के दरमियान ये जानकारी सांसद श्री या उनके साथ ट्रैवल कर रहे दूसरे साथी मेंबर्स के द्वारा हमको बताने में नहीं आई और वो सूरत स्टेशन पे उतरने के बाद भी इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। साथ में इस मामले में तहकीकात करने पर ये पता चला है कि अंकलेश्वर और भरूच के बीच में रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से काम चल रहा है। इस काम में जो मेटल और ट्रैक का रिपेयरिंग के काम के दौरान ऐसी संभावना रहती है, ऐसा रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा क्लेरिफाई किया गया है कि मेटल पार्ट्स या तो पत्थर उछलने के बनाव बनते हैं। फ़िलहाल रेलवे अथॉरिटीज़ द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है कि ये संभावनाएं रहती हैं और इसके अलावा अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स या किसी और द्वारा ऐसी कोई बदमाशी की गई है, उस एंगल पर भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और डिटेल में इन्वेस्टिगेट करके ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। सर, पता ये भी चला है कि जिस कोच में वो ट्रैवल कर रहे थे उस कोच में उन्होंने अपनी पोजीशन भी चेंज की थी और वहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, तो उनके द्वारा क्या ब्रीफिंग किया गया है? RPF की सुरक्षा टीम प्लस
हमारी GRP की सुरक्षा टीम उनके साथ ही थी, उसी कोच में उनके साथ ही ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवलिंग के दौरान उन्होंने सीट अपनी चेंज करी थी, वो किस कारण से चेंज करी वो उस बारे में भी हम तफ्तीश कर रहे हैं, और ऐसी कोई जानकारी मिलेगी कि जिसमें कोई नोटोरियस या कुछ एंटी सोशल एलिमेंट इन्वॉल्व है तो उस बारे में हम कायदेसर की कार्रवाई करेंगे। सर, पुलिस की ओर से वहाँ पर मुआयना भी किया गया होगा प्राइमरी बेसिस पे, क्या देखा आपने वहाँ पर? कैसी कोई संभावना है स्टोन पेंटलिंग? प्राइमरी स्पॉट विज़िट करने पर वहाँ पर आसपास कोई बस्ती नहीं है, ना कोई झुपड़पट्टी है, ना कोई झुग्गी बस्ती है। वहाँ रोड दोनों ट्रैक के दोनों तरफ बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया है, जंगल टाइप का एरिया है। वहाँ इस तरह की संभावना, कोई पत्थर फेंकने की संभावना बिल्कुल नेग्लिजिबल है। उसके बावजूद हम फिर भी उस एंगल पे हम तपास कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और ऐसी कोई अगर हमें जानकारी मिलेगी तो हम आगे कायदेसर की कार्रवाई करेंगे। तो जिस समय ट्रेन पसार हो रही थी, क्या वहाँ पर कामकाज चल रहा था, जो ट्रैक का काम है? बिल्कुल, ट्रैक का कामकाज नियमित 2-3 दिन से चल रहा है। आज भी फिलहाल चल रहा है काम। थैंक यू। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ ले लिया। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने चारशंबे को हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ ले लिया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीनियर जज को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया। इसी साल 17 अक्टूबर को सदर मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस मुकर्रर किया था। हैदराबाद और करीमनगर में धावे। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर के मकान पर भी इनकम टैक्स और ED का छापा। तेलंगाना के कई मकामात पर IT और इन्फोर्समेंट के हुक्काम की जानिब से धावे किए जा रहे हैं। हैदराबाद के अलावा करीमनगर में इनकम टैक्स और ED के हुक्काम ने अचानक छापे मारे। मीडिया के मुताबिक तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर के अलावा ग्रेनाइट ताजरीन के मकानात और दफातर पर धावे किए जा रहे हैं। मलऊन राजा सिंह की मशरूत जमानत मंजूर। हैदराबाद BJP के मलऊन रुकन असम्बली राज्यसभा की अदालत ने मशरूत जमानत मंजूर कर ली है। रुकन असम्बली के वकला ने तेलंगाना हाई कोर्ट में राजा सिंह की दरख्वास्त जमानत दाखिल की थी, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने मशरूत जमानत मंजूर करते हुए हिदायत दी कि रुकन असम्बली को उकसाने वाले बयानात देने से दूर रहना चाहिए। वाज़ेह रहे कि मलऊन रुकन असम्बली को PD एक्ट के तहत गिरफ्तार करके जेल भिजवाया गया है और वो इस वक्त हैदराबाद की चल्लापल्ली जेल में महरूस हैं। अल्लामा इकबाल एक अजीम मुफक्किर। यौम विलादत के मौके पर अल्लामा इकबाल उम्मत मुस्लिमा के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह व बहबूद के साथ मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब, रवादारी और कौमी इत्तेहाद के सख्त हामी थे, जिसका इजहार उनकी शायरी में जगह जगह बिखरा हुआ देखा जा सकता है। अल्लामा इकबाल ने जिस ओहद में आंखें खोली, उस वक्त अंग्रेजी ताकत का सूरज आयन निस्फ नहार पर था और उनसे नुबुर्द आजमा होने वाले मुजाहिदीन में अफसुर्दगी छा चुकी थी। हिंदुस्तानियों की एक बड़ी तादाद को अपना मुस्तकबिल मगरिबी तालीम में नजर आने लगा था। ऐसे माहौल का असर अल्लामा इकबाल पर पड़ना लाजिम था। चुनांचे उनका तालीमी सफ़र लाहौर से कैम्ब्रिज होता हुआ जर्मनी में इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन यूरोप से वतन वापसी के बाद अल्लामा इकबाल के तफक्कुरात और नज़रियात में तब्दीली वाक़ई होने लगी थी, जिसका असर ये हुआ कि हुब्बुल वतनी से सरशार शायर की तरजीजात में कौमियत के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा ने भी जगह ले ली और वो आखिरी सांस तक इसी काज के लिए जिद्दोजहद करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने हम असर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसी शख्सियात की नाराजगी की भी कोई परवाह नहीं की।
बहुत अच्छे जैसी। हाय हाय हाय, क्या बात है। गुलशन की बहारों से तो कलियों की हया से, मासूम सी रोती हुई शबनम की अदा से, लहराती हुई बादे सहर बादे सबा से, हर रंग के हर शान के फूलों की खबा से, चिड़ियों के चहकने से तो बुलबुल की नवा से, मोती की नजाकत से तो हीरे की जिला से, हर शय से झलकते हुए फन और कला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। बहुत अच्छे। दुनिया के हवादिस से, जफाओं से, वफा से, रंजो गमो आलाम से, दर्दों से, दवा से, खुशियों से, तबस्सुम से, मरीजों की शिफा से, बच्चों की शरारत से तो माओं की दुआ से, नेकी से, इबादत से, लग़्ज़िश से, खता से, खुद अपने ही सीने के धड़कने की सदा से, रहमत तेरी हर गाम पे देती है दिला से, हमने तुझे जाना है फकत तेरी अता से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आखिरी बंद है, इब्लीस के फितनों से तो आदम की खता से, औसाफ बराहीम से, यूसुफ की हया से, और हजरत अय्यूब की तस्लीम और रजा से, ईसा की मसीहाई से, मूसा के असा से। आस्ताना मखदूमुल्लाह कड़पा उर्स शरीफ के सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया कड़पा का जायज़ी इजलास। उर्स शरीफ के बेहतर इंतज़ामात को यकीनी बनाने नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह की ओहदेदारों को हिदायत। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। आस्ताना मखदूम इलाही कड़पा में आज सालाना उर्स शरीफ के मौके पर ज़िला के आला ओहदेदारों को एक इजलास आस्ताने के मुशायरे हाल में मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी उर्स के मौके पर तमाम सरकारी महकमों, बल्दिया, पुलिस, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और दीगर महकमों का ताउन हासिल रहेगा। उन्होंने ज़िला कलेक्टर कड़पा विजया रामाराजू और ज़िला एसपी कड़पा के.एन. अनबुराजन को हिदायत दी कि वो उर्स के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने तमाम ज़रूरी इक़दामात करें। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर कड़पा विजया रामाराजू ने तयकीन दिया कि ज़िला के तमाम सरकारी महकमों खुसूसन बल्दी, पुलिस, बरकी और रेवेन्यू की जानिब से तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जाएंगे। ज़िला एसपी कड़पा अनबुराजन ने महकमे पुलिस की जानिब से तमाम ज़रूरी इक़दामात का तयकीन दिया। इस मौके पर सुभान बादशाह, नज़ीर अहमद, अमीर बाबू, हफीजुल्लाह कॉलटेक्स, यज़बी अहमद बादशाह, YSR कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कड़पा के अलावा ज़िला के तमाम आला ओहदेदार मौजूद थे। నాకు అపారమైన అభిమానం అయితే ఖచ్చితంగా అది ఒక స్పిరిచువల్ లీడర్గా కాకుండా ప్రజలు అందరూ ఇంపార్టెంట్ అన్ని కలిసి చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు గురువు గారు తీసుకున్న డెసిషన్ పట్ల నేను గౌరవిస్తూ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి నేను గత సంవత్సరం పోలిస్తే అప్పుడు 3-4 నెలలు కొత్తగా ఉండడం వల్ల ఎక్కడెక్కడ ఏం ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఏమనే విషయం మీద కొంచెం నాకు కొత్త కాబట్టి గట్టిగా చెప్పలేకపోయాను. కానీ ఈసారి ఖచ్చితంగా నాటి ఎస్పీ గారితో కానీ, జేసీ గారు, మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, ఆర్టీఓస్, డిఎస్పీ సందర్భంగా ఖచ్చితంగా కడప జిల్లాలో పెద్ద దర్గా తరఫున చూసి జరిగేటప్పుడు పూర్తి సహకారం కాకుండా ముందుండి అధికారులందరూ కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్ తరఫు నుంచి కూడా ఖచ్చితంగా నిర్వహించాలని చెప్పి ఇప్పటికే కలెక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ఖచ్చితంగా మీ యొక్క సలహాలు, సూచనలు అన్నీ కూడా పాటిస్తూ మరి కడప నగరంలోనే ఒక కడప నగరానికి ఒక పండుగ కళ తీసుకొచ్చే విధంగా జిల్లా యంత్రాంగం అంతా కూడా ప్రభుత్వం కూడా దానికి అన్ని రకాలుగా ఏర్పాట్లు చేస్తుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటూ మరి ఈ సందర్భంగా మరి పెద్దలందరూ కూడా చెప్పినట్టుగా ముఖ్యమైన పాత్ర మున్సిపల్ అధికారులు, మన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు ఉంటుంది కాబట్టి ప్రముఖ పాత్ర మున్సిపల్ అథారిటీస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కూడా దానికి కేపబుల్ పర్సన్. ఖచ్చితంగా ఆయన నేతృత్వంలో మరి ఏదైతే ఇప్పుడు మీరందరూ చెప్పినట్టుగా అన్ని పనులు పూర్తి చేసుకొని మరి ఎక్కడ కూడా శానిటేషన్ ప్రాబ్లం రాకుండా అన్ని రకాల చర్యలు చేపడతామని చెప్పి కమిషనర్ గారి తరఫు నుంచి నేను కూడా మీకు అందరికీ కూడా హామీస్తున్నాను. वोट आपने
नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह का शहर कड़पा के 36वें डिवीजन में पैदल दौरा। हमारे नुमाइंदे मुतहर अली खान की रिपोर्ट। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बादशाह ने आज शहर कड़पा के 36वें डिवीजन के अगाड़ी हरिजनवाड़ा शाही पेट का पैदल दौरा किया। उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की। सरकारी फलाही और तरक्याती स्कीमात से मुतालिक आवाम को वाकिफ कराया। अमजद बादशाह ने कहा कि वजीर आला आंध्र प्रदेश बरसरे इख्तदार आने के बाद हर वक्त अवामी बहबूद में लगे हुए हैं। आज रियासत का हर फिरका व तबका हुकूमत की फलाही स्कीमात से रास्त फ़ायदा हासिल कर रहा है। उनके हमरा कारपोरेटर सलमान बादशाह, इंचार्ज डिवीज़न रफ़ी और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। జబ్బులు ఉంటే అది మనం డాక్టర్ వాళ్ళు ఏం మాత్రం చెప్తారు అది తెచ్చుకోవాలి. అలాగే హాస్పిటల్ వాళ్ళకి చెప్తే ఇది లేదా వాళ్ళు ఏం చదువుతుంది ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఒకరు సెకండ్ క్లాస్ తర్వాత 45,000 డబ్బులు వచ్చాయమ్మా. नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।